Good morning, students. Myself, Dr. Pradeep Paliwal. Today, we'll discuss a very important chapter of inorganic chemistry, coordination compound. What coordination compound is? Coordination compound is a compound formed by the coordination bond or dative bond between central metal and ligand. Here you can see an example of coordination compound, that is potassium hexacyanoferrate. This is the double salt, you can say, but it is different from double salt because in double salt there is salt of mixture of salt of two, that is ferrous sulfate and ammonium sulfate, when combined to form more salt, that is ferrous ammonium sulfate. But here, as we dissolve this ferrous ammonium sulfate or more salt in water, it completely dissociate into ions like iron, ammonium and sulfate ions. But in case of coordination compound K4FeCN6, when we dissolve in water, this coordination complex does not dissociate in water, only we get two ions, that is positive ion of potassium and an complex ion, that is potassium hexacyanoferrate, gives potassium ion and hexacyanoferrate ion. Here we can see this K4 is counter ion, is positively charged ion. Then this complex means in bracket is coordination sphere or coordination entity. This Fe is central metal atom or ion. Then this 6 represents the coordination number or number of ligand, and this Cn in small bracket shows the ligand. The terms related to coordination compounds are, first one is complex ion or coordination entity. As we see in our previous example, that is FeCN6 is our coordination entity. It is an electrically charged moiety. It may be charged, may not be charged, but in our case it is charged moiety in which central metal atom is surrounded by ligands forming coordination bond or dative bond. I think you know very well what is coordination bond. Coordination bond is a bond in which one is acceptor, another one is donor, and donor gives or transfer two electron or pair of electron to central atom or acceptor atom or ion. This second one is cationic complex entity. It is the complex in which carry positive charge. If it carry positive charge, then it is known as cationic species. Anionic, it may be, this complex may be anionic. In some cases it may be neutral. Here in this complex it is anionic entity. So we have three cases. It may be cationic, it may be anionic, it may be neutral. The second thing is central atom or ion. Sometimes central atom loses electron and form positive charge, so we use ion. If it is in the form of neutral, means no loss or gain of electron, then it is atom. So here in case of nickel complex, we have this nickel as a is in +2 state, but the overall charge is 0. Here nickel is a central metal. It is the transition element, or it may be inner transition element in some other cases. The next thing is ligand. Ligand is
the donor atom or donor moiety. The donor moiety must give electrons in pairs. Here, ligand may be various types like unidentate, didentate, polydentate, flexidentate, ambidentate, etc. etc. We learn each in detail. Unidentate. Denticity means जैसे ह्यूमन बीइंग में दांत होते हैं, वो जैसे पकड़ते हैं, इसी तरह से ये जो देते हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसे डेंटिसिटी कहते हैं. इट इज अ लिगेंड इन विच ओनली वन डोनर साइट इज देयर, मीन्स जो कि किससे बाउंड होगा, सेंट्रल मेटल से. इन केस ऑफ वाटर और अमोनिया, ये दोनों जो हैं न्यूट्रल लिगेंड भी हैं और दोनों मोनोडेंटेड हैं. बी क्लियर. कभी कभी ऐसा होगा कि यूनिडेंटेड है, वो देगा हमेशा, इट मे कैरी मोर देन वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक इन केस ऑफ वाटर. वाटर में जो ऑक्सीजन है, इट कैरीज 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बट ये जब भी डोनेट करता है या मैक्सिमम केस में जब डोनेट करता है तो क्या देता है, only 1 pair of electron. That's why its denticity is 1. The second is didentate ligand, where the denticity is 2, like in oxalate ion. Oxalate ion formed by the oxalic acid. Oxalic acid is COOH, COOH. Here loss of 2H plus gives 2 negative ion. This is our oxalate ion. And neutral, that is EN, ethylene diamine. Here the denticity is 2, 1 from by this nitrogen and from this, and in the same case we have 2 denticity in oxalate ion also. Polydentate ligand is EDTA is polydentate ligand. Here denticity is 6. Next is ambidentate ligand. Ambidentate ligand is the ligand which have 2 donor side. उसमें 2 डोनर साइड होती है, लेकिन कभी एक डोनेट करता है और कभी दूसरा. इन केस ऑफ NO2 माइनस, हियर द डोनर साइड मे बी ऑक्सीजन, मे बी नाइट्रोजन. इन द अदर केस SCN, हियर डोनर साइड मे बी नाइट्रोजन, मे बी सल्फर. जो अलग अलग लिगेंड्स हैं, लाइक CN है, तो CN में भी 2 डिफरेंट साइड्स होती हैं. Maybe it may use carbon or may use nitrogen as a donor site. That's why it is known as ambidentate ligand. The next one is chelating ligand. Chelating means a cage-like structure. Means जो ligand होगा उसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा कि वो सराउंडिंग में एक रिंग फॉर्म करता है. रिंग जो होगी including metal central atom, including this, it may be of 5 or 6 membered ring. Because in case of 3 member or 4 member, because of internal strain or repulsion, it is not stable or less stable. So chelating ligands, it is the word come from chela. Chela means cage like structure, और ये सराउंडिंग से उसे कवर कर लेता है और बनाता है. इसका एक एग्जाम्पल अपन EDTA भी यूज कर सकते हैं. इथिलीन का जो ट्राइन है, टेट्राइन कंपाउंड से, उनको भी यूज करते हैं, वेयर द रिंग इज ऑफ 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड. नेक्स्ट वन इज पाई एसिड लिगेंड्स. पाई एसिड लिगेंड्स लाइक वी हैव डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स, जिनमें जो डोनर साइड होती है वो पाई बॉन्ड के थ्रू देता है. जहाँ पर जो डबल बॉन्डेड कंपाउंड से वो अगर डोनेट करते हैं, देन इट इज नोन एट पाई एसिड लिगेंड, जो अपने कुछ एग्जांपल्स में देखा है. नेक्स्ट वन इज कोऑर्डिनेशन नंबर. कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपली द नंबर ऑफ लिगेंड अटैच्ड टू द सेंट्रल एटम इज नोन एज नंबर ऑफ लिगेंड. बट वी हैव 2 different cases. In case 1, where monodentate ligands are there, in case of monodentate, coordination number is equal to number of ligand. But in case of polydentate ligands, the coordination number is equal to number of ligand. But here it is the denticity of
ligand means it must multiply. If we have didentate ligand, then we multiply it by 2. If we have tetradentate ligand, then we multiply it by 4. The next one is coordination sphere. A sphere, inside this sphere only and only coordination bond is there, means the central atom or central metal atom and ligand attached to it enclosed in a square bracket where coordination bond is there. Next one is oxidation number of central metal या central atom. We have to calculate this oxidation number by using simple formula कि whether metal is losing 1, 2, 3 or more than 3 electrons, and this is known as oxidation number. The charge of complex, if all the ligands are removed along with electron pairs that are shared with the central atom, is called oxidation number of central atom. Like in case of tetracyanocuprate, oxidation number of copper is +1. Why? Because 4Cn, each Cn carries -1 charge and it is showing 3- in this complex. So this copper is only providing 1 electron, hence the oxidation number of copper is 1, and it must write in small bracket in Roman like copper first. Types of complexes. We have various types of complexes. First one is homoleptic complexes. For example, or for our previous example, we use an example of copper hexacyanoferrate where 6 ligands are there and all 6 ligands are same. If all are same, then we can say this is an example of homoleptic complexes. Like in another example, hexaamine cobalt third ion, that is also an example of homoleptic complex. Second one is heteroleptic complex. Homo means same, hetero means different. Here the ligands must be more than one type. Here amine and chloride, 2 different ligands are there. That's why it is known as heteroleptic complexes. Third type is labile or inert complexes. Labile and inert complexes, there are another type of complexes. First is labile, the complexes in which ligand substitution is fast. Suppose we will see in isomerism, Cl may inside, may outside, may inside and may outside. This speed is very fast, then this type of complex is known as labile complexes. And inert complexes in which substitution is slow, means it retains there, then this is known as inert complex. Next topic is effective atomic number. Effective atomic number is, this concept was suggested by Sidgwick, and in this complex there are 3 words: effective atomic number. Effective atomic number means each atom has the tendency to complete their octet according to their respective inert gas configuration. So here EAN, we can use this formula, effective atomic number is equal to Z minus oxidation number of metal plus 2 into coordination number. Why 2 into coordination number? Because each coordination number, each ligand provides 2 electron. Why minus of oxidation number? Because it loses the electron, and Z is the atomic number of metal. So an ion with central metal atom having En equal to inert gas will be more stable. So we can easily calculate En by using various examples, and we have the formula. By this we can simplify that
the complex is following inert gas configuration or not. It is not necessary at all कि जो complex है वो हमेशा inert gas को होगा. There are some exceptions. Next one is IUPAC nomenclature, which is very important and very simple. You just follow the rule. You can provide name for complex or from name you can create the complex. आप नाम से कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं और कॉम्प्लेक्स अगर दिया है तो उसका नाम भी इजीली लिख सकते हैं. इसके लिए बहुत सिंपल से रूल हैं. फर्स्ट कि आपको उसका बेसिक्स पता हो, देन आप इजीली किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए नोमेनक्लेचर कर सकते हैं विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी मिस्टेक. फर्स्ट, नेम ऑफ द कंपाउंड इज रिटन इन 2 parts, दैट इज नेम ऑफ केटायन एंड नेम ऑफ एनायन. कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स है आपको तो कितने पार्ट में लिखना है? वन इज केटायनिक पार्ट, अनदर वन इज एनायनिक पार्ट. अगर आपको कभी कभी ऐसा होता है कि ब्रैकेट के दोनों साइड कुछ नहीं है, मीन्स दिस कॉम्प्लेक्स इज न्यूट्रल. द केटायन इज नेम्ड फर्स्ट इन बोथ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. अगर आपके पास 2 पार्ट हैं, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, तो आपको हमेशा कौन सा पार्ट पहले लिखना है? पॉजिटिवली चार्ज. फिर क्या लिखना है आपको? कॉम्प्लेक्स का नाम. थर्ड इज dissimilar ligands are named in alphabetical order. Suppose we have heteroleptic case. heteroleptic case अपन ने अभी देखा जहाँ पर different ligands हैं. अगर सेम है तो कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली अपन लिख देंगे. लेकिन heteroleptic है, if we have more than one ligand like CN है, Cl है, NH3 है, तो फिर आपको जो उनका नाम है उसमें अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर फॉलो करना है. You have to follow alphabetic order for nomenclature. Next is for more than similar ligands. अगर आपके पास similar ligand more than 1 है, मान लो कि 2 अमीन है, NH3 जो ligand है वो कितने हैं? 2. Then you use the word di. If 3 are there, then use tri. If 4, then tetra, then penta, etc. etc. In case आपके पास जो कॉम्प्लेक्स है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स है और उसमें लिगेंड है, उस लिगेंड के नाम में ऑलरेडी डाई है, लाइक इथिलीन डायमीन, EN जैसे अपन शो करते हैं. अगर उसमें है और वो 2 है तो फिर अपन डाई 2 बार यूज नहीं करते. वी विल नॉट यूज डाई रिपीटेडली. वी यूज अनदर टर्म बिस, ट्रिस एंड टेट्राकिस. अगर 2 हैं तो बिस, अगर 3 है तो ट्रिस और 4 है तो टेट्राकिस विल यूज. नेक्स्ट इज इफ द कॉम्प्लेक्स पार्ट इज एनायन. अभी आपके पास 3 कंडीशन हो सकती है, या तो कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल होगा, या तो कॉम्प्लेक्स एनायनिक होगा, या तो कॉम्प्लेक्स केटायनिक होगा. तो इफ द कॉम्प्लेक्स पार्ट इज एनायनिक, देन नेम ऑफ द सेंट्रल मेटल एंड्स विद सफिक्स 8. जैसे कॉपर है तो अपन कॉपर नहीं लिखेंगे, वी यूज क्यूप्रेट. अगर सिल्वर है तो सिल्वर का बेसिक नेम लिखेंगे अर्जेंटम और फिर उससे बनेगा अर्जेंटेट. नेम ऑफ एनायनिक लिगेंड. अब आपके पास लिगेंड्स हैं, लिगेंड्स मोस्टली नेगेटिव हैं, न्यूट्रल हैं और कभी कभी पॉजिटिव लिगेंड्स भी होते हैं. इफ नेगेटिव लिगेंड्स आर देयर, देन वी यूज द लिगेंड एंड्स विद O, like chloride, then chlorido, bromide, then bromido, cyanide, then cyanido, that's all. But if we have positive ligand, then we use suffix em. We use suffix em. Like NO, positive है तो उसे यूज करेंगे अपन नाइट्रोसोनियम. But exception is there in case of H2O, NH3 and CO. For H2O we use a word aqua. Aqua means water, aquatic. Then amine. Here remember we use AMM. Must write in spelling AMMINE for amine as a ligand, and for CO this is not cobalt. CO both are capital, then it is carbonyl
and for NO neutral ligand it is nitrosyl. Next one is oxidation state. Oxidation state for metal in cation, anion or neutronic complex is indicated by Roman numeral A in parenthesis. Next one is name of the complex part is written as one word. जो पूरा कॉम्प्लेक्स है उसका नाम सिंगल वर्ड में लिखना है, आपको एक ही वर्ड में लिखना है, ब्रेक बीच में कोई भी गैप नहीं होगी, बीच में कोई भी गैप नहीं होगी. इफ द कॉम्प्लेक्स इज ए केटायन मेटल इज नेम्ड एज सेम एज द एलिमेंट. अगर वो पॉजिटिव पार्ट में है या मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें कोई चेंज नहीं करना, एज इट इज अपन लिखते हैं. द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज नेम्ड सिमिलर टू दैट ऑफ कॉम्प्लेक्स केटायन. केटायनिक पार्ट हो मेटल में या न्यूट्रल हो, दोनों को सेम लिखते हैं. लाइक विल सी एन एग्जाम्पल ऑफ Cr NH3 होल थ्राइस H2O होल थ्राइस Cl3. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपके पास एक प्रॉब्लम आती है आपको सबसे पहले समझना है कि उसमें क्या क्या दिया है. हियर वी हैव Cl3 क्लोराइड है और कहाँ है ये, कॉम्प्लेक्स के बाहर है. और कॉम्प्लेक्स के अगर बाहर है तो एक काउंटर आयन है, नेगेटिव काउंटर आयन है. इट इज नॉट एक्टिंग एज लिगेंड, ये लिगेंड नहीं है. देन दिस Cr इज सेंट्रल मेटल एटम. वी हैव two ligands, one is amine, another one is H2O, that is aqua. And the number of ligand, amine कितना है 3, aqua कितना है 3, means it is an example of heterolactic complex. और यहाँ जब अपन कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं इसका अगर नाम लिखना है तो फर्स्ट रूल क्या है, आपको पॉजिटिव पार्ट लिखना है. लेकिन यहाँ पर कोई पॉजिटिव नहीं है काउंटर आयन, तो आपका ये कॉम्प्लेक्स है, यही क्या हो जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि ये ओरल क्या है न्यूट्रल. ओरल न्यूट्रल है तो ये पार्ट क्या होगा आपका पॉजिटिव और ये पार्ट क्या होगा नेगेटिव. तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होगा. अपन स्टार्ट करते हैं. वी हैव टू लिगेंड्स, वन इज अमीन एंड अनदर वन इज एक्वा. अगर आपके पास दो लिगेंड हैं तो आपका रूल कहता है कि आपको यू हैव टू फॉलो अल्फाबेटिक ऑर्डर. एंड फॉर दिस वी राइट द spelling of amine and aqua, AMM and AQ. So amine comes first. Here we use triamine, underline करके लिखा हुआ है मैंने AMM, amine. Then trichloro and the central metal is chromium. We will not use 8 word. 8 वर्ड कब आता, जब कॉम्प्लेक्स क्या होता या मेटल कौन से स्टेट में होती नेगेटिव, लेकिन अभी क्या है पॉजिटिव. देन वी राइट द ऑक्सीडेशन स्टेट इन ब्रैकेट. ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए सिंपल सा फॉर्मूला है जो अपन ने निकाला था कि क्रोमियम है और ये क्लोराइड है. दीज टू लिगेंड्स आर न्यूट्रल लिगेंड. अगर दोनों न्यूट्रल है तो एक क्लोरीन कितना माइनस करता है -1, 3 है तो कितना माइनस होगा -3. अगर ये है तो क्रोमियम कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा होगा, दैट इज 3. तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, थर्ड. केस में लिखना है इसको ब्रैकेट में. देन विल राइट क्लोराइड. रिमेंबर वी विल नेवर शो द नंबर ऑफ काउंटर आयन लाइक ट्राइक्लोराइड. ट्राई कब यूज करते हैं, जब वो लिगेंड हो. काउंटर आयन के केस में हम इसके नंबर को यूज नहीं करते हैं. Okay, all right. The next example is CO. We have an example of CH2, H and SO3. We have ethylene diamine complex and cobalt sulfate. तो ये भी कितना है, ये 1 है और ये टोटल कितने हैं आपके पास, ट्वाइस है. कितने हैं, ट्वाइस. तो we use another term and in the same case AgNH3 whole twice, AgCN whole twice. This is diamine. For this is the positive part, this is the negative part. We use first the positive part, then diamine silver. Here +1 charge, here -1 charge. So diamine silver first and dicyano argentate.
remember this Ag in positive form are positive and this Ag is negative. So this Ag is written as silver, but this Ag is written as argentate, not as silver. Argentate first. For example, you have seen many times K4FeCN6, here potassium hexacyanoferrate second. In case if you have iron, then put the word iron at the end of name. Next topic is isomerism. Isomerism, we have two types of isomerism. First one is structural. In structural isomerism, molecular formula is same but structure is different. Isomerism is made up of two words, iso and mer. Iso means same, mer means unit, where molecular formula is same but structural formula is different. On the basis, it can be subdivided in linkage isomerism. It can be subdivided in linkage isomerism. This type of isomerism is shown by the compounds having ambidentate ligand. So, in case of NO2, we have an example of NO2. NO2 is same, but here इसकी जो binding side है वो N है. So we use nitro N, and in this case we use nitro O. So the name will, this is our basic. We can repeat. नाम क्या होगा इसका? We have two different ligand. One is NH3 and another one is NO2. So we use first taken as alphabetic order में जो आ रहा है पहले वो लेंगे. पेंटाअमीन, देन नाइट्रो. आपको इंडिकेट करना होगा कि वेदर इट इज अटैच्ड विथ N और O. तो यहाँ किससे अटैच्ड है ये? N, कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड. बट इन केस ऑफ दिस हियर पेंटाअमीन नाइट्रो, but it is connected or linked with CO with N, so it is known as O cobalt third chloride. Next one is coordination isomerism. This type of isomerism arises from interchange of ligands between cationic and anionic complex. एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें दो पार्ट होते हैं. दो पार्ट में एक पॉजिटिव पार्ट होता है और एक नेगेटिव पार्ट है. तो जो नेगेटिव पार्ट का लिगेंड है वो कहाँ जाता है? पॉजिटिव पार्ट में. और पॉजिटिव पार्ट का लिगेंड है वो कहाँ चला जाता है? नेगेटिव पार्ट में. मीन्स यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ लिगेंड होता है. एक्सचेंज ऑफ लिगेंड होता है. इन दिस केस जब अपन लेते हैं एग्जाम्पल Cr linked with NH3, but this is the example where hexaamine chromium is there, but in this example or this part hexaamine cobalt is there. Means exchange of ligand between metal is there, so it is known as coordination isomerism. Next one is ionization sphere. Ionization simply कि कोई कॉम्प्लेक्स डिसोसिएट होके डिफरेंट आयन देगा. एक ही एग्जाम्पल में कॉम्प्लेक्स के इनर साइड और आउटर साइड में एक्सचेंज ऑफ लिगेंड होगा. लाइक CONH3 होल 5 SO4 Br एंड CONH3 होल 5 Br SO4. अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स को लेता हूं तो ये डिसोसिएशन पे कौन सा आयन देगा? Br, जो आपको कॉम्प्लेक्स में किस कलर का शो करेगा? रेड. बट इन दिस केस इसमें रिलीज कौन सा होगा? SO4, और ये आपको कलर कौन सा शो करेगा? वायलेट. सो दिस इज द आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. दिस आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ आयनाइजेबल एनायन विथ एनायनिक लिगेंड. लिगेंड के साथ में वो आयंस क्या होंगे? एक्सचेंज होंगे. इस केस में सल्फेट लिगेंड है और इस केस में Br लिगेंड है. मीन्स लिगेंड का एक्सचेंज होगा और ये कहलाएगी आपकी आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. नेक्स्ट वन इज सॉल्वेट आइसोमेरिज्म. सॉल्वेट आइसोमेरिज्म मीन्स जब अपन कोई कॉम्प्लेक्स लेते हैं और उसमें हाइड्रेट के फॉर्म में वाटर अवेलेबल होता है. वाटर अवेलेबल होता है तो वाटर कैन एक्ट एज ए हाइड्रेटेड फॉर्म और वाटर कैन एक्ट एज donor form or in form of ligand. So on the basis of this it can vary. Here COH2 whole 6 Cl3,
जब अपन इसको डिसोसिएट करते हैं तो यहाँ पर लिगेंड कौन है, 6 वाटर मॉलिक्यूल है। इस केस में लिगेंड कौन है, 4 वाटर मॉलिक्यूल और 2 क्लोरीन मॉलिक्यूल है या क्लोराइड आयन है, और यहाँ पर 3 वाटर मॉलिक्यूल है और 3 क्लोराइड आयन है। सो मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ऑल these structure are same but structure is different. The next part is, first is structural isomerism, second one is stereo. Stereo means 3-dimensional structure. 3-dimension structure, उसका स्ट्रक्चर जो है एज इट इज रहेगा, लेकिन 3D में उसका जो अरेंजमेंट है एटम्स का, मॉलिक्यूल का, वो डिफरेंट हो जाएगा, जिसे कहते हैं अपन स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमर्स हैव सेम केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल बॉन्ड्स। देयर इज नो चेंज इन केमिकल बॉन्ड बट दे हैव डिफरेंट स्पेशियल अरेंजमेंट। कभी ऊपर से आएगा और कभी कहां से आएगा, नीचे से। रिमेंबर, इसमें स्ट्रक्चर एज इट इज होगी, देयर इज नो चेंज इन स्ट्रक्चर, बट जब अपन इसका स्टीरियो देखेंगे तो उसका स्पेशल अरेंजमेंट जो डोनर का होगा वो डिफरेंट होगा। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू सब कैटेगरी, दैट इज जियोमेट्रिकल आइसोमर। जियोमेट्री चेंज, अगर किसी मॉलिक्यूल की जियोमेट्री चेंज होती है देन इट इज नोन एज जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। इट इज, यू हैव सीन मेनी टाइम सिस एंड ट्रांस। मान लो एक कॉम्प्लेक्स है आपके पास लाइक दिस NH3 NH3 Cl एंड Cl। अगर इस कॉम्प्लेक्स को अपन ध्यान से देखेंगे तो ये कॉम्प्लेक्स आपका स्क्वायर प्लेनर है। कौन सा है, स्क्वायर प्लेनर। लेकिन इसमें दोनों NH3 सेम साइड पे हैं, और अगर दोनों सेम साइड पे हैं देन इट इज नोन एज सिस। सिस मतलब समान, सेम। एंड अगर यहाँ अपन देख रहे हैं तो ये दोनों अपोजिट साइड पे हैं, और अगर ये अपोजिट साइड पे हैं देन इट इज ट्रांसफॉर्म। Okay, so it is of 2 type, cis and trans. We have various example in square planar tetrahedral complexes, but in tetrahedral there is no change in geometry. अगर ये ऊपर से आ रहा है, नीचे से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, चारों में से कहीं से आएगा तो उसका कोई स्पेशल अरेंजमेंट चेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ व्यूअर साइड चेंज होगी। क्या होगी, व्यूअर साइड। लेकिन in tetrahedral complexes there is no geometrical isomerism, but in square planar complexes like an example of MX2L2 जो अपन ने अभी देखा, PT NH3 whole twice, PT NH3 whole twice और Cl2 whole twice के केस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है, स्ट्रक्चर फॉर्मूला दोनों का सेम है, फिर भी इसमें आइसोमेरिज्म है। कभी ये सेम साइड पे होंगे और कभी ये अपोजिट। इफ ये सेम साइड पे हैं देन सिस होगा, अगर ये अपोजिट साइड पे है तो ये ट्रांस होगा। द नेक्स्ट, इट कैन आल्सो बी शोन इन कोऑर्डिनेशन नंबर 6। वहां आपका जो स्क्वायर प्लेनर था वहां कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 6 है। एग्जाम्पल वही ले सकते हैं MX2L4, जहाँ X2 टाइप के लिगेंड है और L कितने हैं, 4। तो यहाँ भी आप देखेंगे कि ये जो लिगेंड्स हैं ये सब क्या है, सेम साइड है। यहाँ पर जो लिगेंड्स हैं वो क्या है, अपोजिट साइड है, 1 2 3 एंड 4। तो एक टाइप होगा आपका सिस और एक टाइप होगा आपका ट्रांस। तो दोनों को अपन इंडिकेट कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रीफिक्स सिस एंड ट्रांस। ये और अच्छे से अपन देख सकते हैं यहाँ पर कि ये NH3 एक साइड में है और यहाँ पर NH3 ये अलग है और ये अलग है। तो अगर ये सेम साइड है तो फेशियल होगा, और ये होगा तो अपन इसे मेरियल बोलते हैं, मेरिडोनियल बोलते हैं, इसे अपन मेरिडोनियल बोलते हैं, दैट इज मर। वी यूज द एब्रिवेशन दैट इज फेशियल एंड मेर। नेक्स्ट वन इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल मीन्स इट इज समवट रिलेटेड टू ऑप्टिक्स, लाइट। अगर कोई चीज लाइट के केस में या लाइट के प्रति सेंसिटिव हो और लाइट के अगेंस्ट वो डिफरेंट टाइप से बिहेवियर शो करे तो उसे अपन बोलते हैं ऑप्टिकल। यहाँ पर नहीं जो बात है वो भी क्या है, ऑप्टिकल है। These are the complex which have chiral center. What is chiral center? Chiral center is asymmetric carbon. What is asymmetric? Asymmetric means a carbon having 4 different valency. Like
carbon attached to A, B, D and E. अगर ये 4 different valency से होगा, then this carbon is known as chiral carbon. So for optical isomers, it is mandatory, it is necessary कि it must have chiral center, और वो chiral center के अगेंस्ट में लाइट आएगी. वो डेक्स्ट्रो रोटेट भी कर सकता है, वो लियो भी कर सकता है. डेक्स्ट्रो मीन्स राइट साइड एंड लियो मीन्स लेफ्ट साइड. तो डेक्स्ट्रो अलग होगा और लिवो अलग होगा. नाउ वी कम टू अनदर टॉपिक, दैट इज बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स. Various theories are there. First one is Werner's theory. Werner theory explain the coordination complex. It is very simple and very systematically written. Metal exhibit 2 type of valencies. उन्होंने इसको शो किया है कि जो मेटल होती है, सेंट्रल मेटल, उसमें 2 टाइप की वैलेंसी होगी. One is primary, another one is secondary. Primary valency correspond to oxidation number, जैसे +1, +2, +3, या आयनाइजेबल है जो चेंज होगी, वेरिएबल होगी. सेकंड वन इज, और वो जो वैलेंसी है वो हमेशा एनाइन से सेटिस्फाइड होगी. दीज आर आयनाइजेबल एंड नॉन डायरेक्शनल. इनकी कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी, ये कहीं से भी अटैच हो सकती है. सो इन्होंने फर्स्ट पॉइंट में कहा कि एक सेंट्रल मेटल है, सेंट्रल मेटल एटम की 2 टाइप की वैलेंसी होगी. वन इज प्राइमरी. प्राइमरी वैलेंसी को अपन आयनाइजेबल बोल सकते हैं, ये नॉन डायरेक्शनल होगी. और ये जो कॉरस्पॉन्डिंग होगी वो किसके अगेंस्ट होगी, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर के, कि अगर +2 है तो 2 नेगेटिव जुड़ेंगे, +3 है तो 3 नेगेटिव जुड़ेंगे एंड दिस. देन इसको उन्होंने शो किया बाय डॉटेड लाइंस. ये नॉन डायरेक्शनल है. सेकंड आता है आपका सेकेंडरी वैलेंसी. Secondary valency is satisfied by ligands, means by forming coordination bond. And coordination bond जब भी फॉर्म होगा तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, फिक्स होगी. Means it is decided by the valency. ये इसके 2 मेन पॉइंट्स हैं. वन इज इट इज डायरेक्शनल एंड सेकंड इट इज नॉन आयनाइजेबल. अपन ने फर्स्ट पॉइंट में भी देखा था जब हमने स्टार्ट किया था चैप्टर, तो कहा था कि इसकी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, इसको वाटर में भी अपन डिसॉल्व करते हैं तो ये डिसोसिएट नहीं होगा. मींस इट इज नॉन आयनाइजेबल. इट इज नॉन आयनाइजेबल एंड डायरेक्शनल. द प्राइमरी वैलेंसी नॉर्मली आयनाइजेबल. इट इज इक्वल टू पॉजिटिव चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल एटम. These valencies are satisfied by negative charge ions, may be ligand, may not be ligand. For example, in primary valency 3, it is equal to oxidation number or oxidation state of central atom. The secondary valency is non-ionizable. It is equal to number of ligands. It is always equal to number of ligand present in the complex. It is also called coordination number of the metal. It is commonly satisfied by neutral and negatively charged ligand. We have already seen there are 3 types of ligand, mostly negative and neutral, but sometimes positive ligands are also there like NO+ or NH2, NH3+. Next theory is VBT. It is given by Pauling in 1930s. When a complex is formed, जब एक कॉम्प्लेक्स बनता है, मेटल आइटम प्रोवाइड्स एम्प्टी ऑर्बिटल्स. जब भी कोई कॉम्प्लेक्स बनता है, इनकी थ्योरी में इन्होंने कहा है कि कोई मेटल एटम मेटल होगा, जब वो किसी से बॉन्ड बनाएगा, और बॉन्ड बनाएगा कौन से बॉन्ड फॉर्म करेगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करेगा. तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करने के लिए चूंकि ये कंडीशन है कि दोनों जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ से आएंगे, लिगेंड से. मींस उस ऑर्बिटल के पास जितने कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहा है उतने उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए. ओके, देन कोऑर्डिनेशन नंबर शोज द नंबर ऑफ सच एम्प्टी ऑर्बिटल्स. अगर किसी में 3 एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, वो बॉन्ड में टेक पार्ट कर रहे हैं, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3. अगर 6 कर रहे हैं तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 6. These empty orbitals first mix and form hybrid orbital by using
hybridization. You know very well, hybridization is intermixing of orbitals of about similar energy. लगभग समान एनर्जी के ऑर्बिटल आपस में मिक्स होंगे और उतने ही एग्जैक्टली उतने ही नंबर के एग्जैक्टली सेम शेप एंड साइज के न्यू ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। लाइक sp में एक s होगा। जब ये मिक्स होंगे, इसके पहले इसका शेप और एनर्जी लेवल में वरी स्लाइटली अलग डिफरेंट हो सकता है, लेकिन मिक्सिंग होने के बाद जब ये फाइनल ऑर्बिटल्स बनते हैं तब उनका शेप क्या होगा, एक जैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। सो एम्प्टी ऑर्बिटल hybridized before participation of in bonding, and nature of hybridization depends on the nature of metal and nature of approaching ligand. अब यहाँ पर जैसे मान लो कि कोई लिगेंड है, वो आ रहा है किसी डायरेक्शन में और मेटल का जो ऑर्बिटल है वो किसी और डायरेक्शन में है, तो बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। सो ये जो दोनों चीजें हैं डिपेंड करेगी नेचर ऑफ मेटल एंड नेचर ऑफ अप्रोचिंग लिगेंड। On the basis of this, we have two types of complex. One is inner orbital and second one is outer orbital complex. Inner नाम से ही क्लियर है, जिसमें इनर साइड के ऑर्बिटल यूज होंगे, मोस्टली डी ऑर्बिटल यूज होगा, तो इसे बोलेंगे इनर डी एंड आउटर डी। इनर मीन्स सपोज आपके पास कोई एग्जाम्पल हैगा, जैसे अपन ले रहे हैं sp3d2। sp3d2 तो यहाँ पर D कहाँ दिख रहा है आपको, आउटसाइड में। कहाँ दिख रहा है, आउटसाइड में। और अगर ये आउटसाइड है तो दिस इज आउटर ऑर्बिटल। अगर आप दूसरा केस देख रहे हैं तो यहाँ D कहाँ दिख रहा है आपको, अंदर, तो ये ND होगा और ये n-1d होगा। दिस इज आल्सो नोन एज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, और ये कॉम्प्लेक्स हमेशा बनता है वीक लिगेंड से, जिनकी पेयरिंग कैपेसिटी नहीं होती। पेयरिंग कैपेसिटी मींस जो इलेक्ट्रॉन आपके अभी सिंगल है, अगर लिगेंड आता है तो इनको क्या कर देता है, पेयर अप कर देता है। अगर ये इसे पेयर अप कर देगा, देन दिस इज नोन एज पेयरिंग कैपेसिटी। अगर लिगेंड खुद ही कमजोर है, वीक है, तो क्या पेयरिंग होगी, नहीं। और अगर पेयरिंग नहीं होगी तो उसे अंदर के इनर साइड के डी ऑर्बिटल यूज नहीं कर पाएगा, और नहीं करेगा तो बाहर के उसे यूज करना है, और यूज करने पे मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसकी स्पिन क्या होगी, ज्यादा। स्पिन क्या होगी, ज्यादा, और स्पिन ज्यादा होगी तो ये कहलाता है वीक फील्ड लिगेंड और हाई स्पिन लिगेंड। बट इन केस इनर ऑर्बिटल आर यूज्ड, लाइक n-d1 शेल के जो d ऑर्बिटल है वो यूज हो रहे हैं, देन दिस इज नोन एज inner orbital or inner complex, or also known as low spin complex, or formed by the strong field ligands. We can clear cut this by using an example. Suppose we have an example of CONH3 3+, that is hexaamine cobalt third ion. For this cobalt, the atomic number of cobalt is 27. By losing 3 electron for 27, D7 configuration must be there. और यहाँ अगर अपन देख रहे हैं तो एक इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन गए, लूज हो गए S से, और 1 इलेक्ट्रॉन चला गया आपका D से। तो अब जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है CO3+ स्टेट में, CO3+ स्टेट में, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, D6। क्या होगा, D6। नाउ इसको, ये जो ऑर्बिटल्स हैं 1 2 3 4, अभी इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल कितने हैं, 4। अगर एम्प्टी ऑर्बिटल 4 है तो इसकी जो स्ट्रक्चर है या इसका जो होना चाहिए था, कितना होना चाहिए था, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर। लेकिन यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, मींस इसके पास कितने एम्प्टी ऑर्बिटल हैं, 6 ऑर्बिटल। अगर 6 ऑर्बिटल हैं तो ये जो लिगेंड जैसे ही अप्रोच करेगा मेटल के पास, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन अभी जो सिंगल हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये बाय द इफेक्ट ऑफ दिस लिगेंड, एंड दिस लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग लिगेंड।
स्ट्रॉन्ग लिगेंड के इफेक्ट में इनकी पेयरिंग होगी, और जैसे इनकी पेयरिंग होगी तो ये दो इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे इधर। वी हैव नाउ 2 empty d ऑर्बिटल्स ऑफ n-1d शेल। कौन सा होगा ये? n-1d। और जैसे n-1d होगा तो वी हैव 2 d ऑर्बिटल्स, 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल। नाउ मिक्सिंग होगी इनकी, हाइब्रिडाइजेशन होगा, और हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या होगा? d2sp3। और इस d2sp3 में 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कौन डोनेट करेगा? अमोनिया, वो आ जाएंगे यहाँ पर। कॉम्प्लेक्स होगा आपका d2sp3। स्ट्रक्चर होगा आपका ऑक्टाहेड्रल। कौन सा होगा? ऑक्टाहेड्रल। और कॉम्प्लेक्स जो बनेगा वो होगा इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ अगर मैं स्पिन की बात करूं, ये सेम कॉन्फ़िगरेशन रहता तो इसकी स्पिन क्या होती? 1 2 3 4। 4 है तो अबाउट आती 4 के समथिंग। लेकिन यहाँ अगर मैं देखता हूं तो यहाँ पर देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और इसकी स्पिन कितनी होगी? 0। एंड अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इफ देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जनरली वी कैन से दिस इज डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। outer orbital complex. In case of outer orbital, where outer d is used, suppose this is 3d. In case of CO, here it is also in the +3 oxidation state. तो +3 में क्या होगा? ये D6 कॉन्फ़िगरेशन में है। D6 कॉन्फ़िगरेशन में है तो इसके पास 4s और 4p भी है, और 4d भी एम्प्टी है। लेकिन अब जो अप्रोच कर रहा है वो लिगेंड कौन सा है? F। एंड F जो लिगेंड है, फ्लोराइड लिगेंड है, वो क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। उसकी इतनी पावर नहीं है कि वो इनको पेयरिंग करवा दे। और अगर ये पेयरिंग नहीं करवा पाएगा, तो उसको यूज कौन से करने पड़ेंगे? चूंकि 6 और लिगेंड्स आ रहे हैं, 6 लिगेंड को कितने एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए? 6। तो अवेलेबल कितने हैं? 1 और 3। तो उनको बाकी जो 2 हैं कौन से यूज करने पड़ेंगे? D के। लेकिन वो D कौन सा होगा? 4D। इंस्टेड ऑफ 3D ये यूज करेंगे 4D विच इज आउटर। तो यहाँ पर अब इनकी मिक्सिंग होगी, और मिक्सिंग पे क्या बनेगा? sp3d2। हाइब्रिडेशन हो जाएगा आपका sp3d2, और कॉम्प्लेक्स बनेगा आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इनर एंड आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड में होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होना चाहिए। वो अपन अभी देखेंगे, एक सीरीज है, उसकी एक बहुत ही शानदार ट्रिक है जिससे आप याद कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो स्पिन क्या होगी? लो स्पिन होगी। लेकिन आउटर फील्ड में वीक फील्ड होगा तो स्पिन क्या होगी? हाई। इसीलिए इनको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स और इनको अपन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। हाइब्रिडेशन जो होगा वो होगा d2sp3 या dsp2। यहाँ पर हाइब्रिडेशन होगा sp3d2 या sp3, यही होगा। इसमें अंदर वाले d यूज नहीं होंगे। अगर अपन केवल टेट्राहेड्रल के लिए यूज कर रहे हैं, 4 लिगेंड के लिए यूज कर रहे हैं, तो वहाँ dsp2 होगा, और dsp2 है तो शेप होगा स्क्वायर प्लेनर। लेकिन यहाँ sp3 बन रहा है तो शेप होगा आपका टेट्राहेड्रल। देन अनदर एग्जांपल ऑफ इनर कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर 4। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के भी 2 टाइप हैं। या तो वो dsp2 होगा, मीन्स स्क्वायर प्लेनर, या sp3 होगा। dsp2 1 1 2, टोटल कितना हुआ? 4। यहाँ अपन बात करते हैं sp3 में, तो 1 + 3 कितना हुआ? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, लेकिन हाइब्रिडेशन दोनों में डिफरेंट है। हियर NiCN4 2-। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग कॉम्प्लेक्स देखते से ही बता देते हैं कि ये वाला हाइब्रिडेशन है। कोई विशेष नहीं है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है। आपको सिर्फ पहचानना है कि वेदर द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड। सेकंड, एक और बड़ी मुश्किल आती है, कभी कभी पूछते हैं लिगेंड आपको स्ट्रॉन्ग होगा, बट सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो है वो होना चाहिए अवेलेबिलिटी ऑफ एम्प्टी डी ऑर्बिटल। लिगेंड है, कितना ही पावरफुल है, वो आ गया है, लेकिन अगर आपके यहाँ पर बैठने की जगह नहीं है तो क्या वो पेयरिंग करवा पाएगा? नो। उसको कहाँ बैठना पड़ेगा? पीछे। अगर कैपेसिटी है, अगर आपके पास जगह है,
तो वो पेयरिंग आपकी करवा सकता है। लेकिन अगर आपके पास जगह नहीं है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल है या डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं है, तो फिर उसको कहाँ लेना पड़ेगा, पीछे। इन दिस कॉम्प्लेक्स साइनाइड इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो वो क्या करा देगा, पेयरिंग करा देगा। पेयरिंग जैसे ही होगी तो एक डी ऑर्बिटल खाली होगा, यूज होगा DsP2 यूज होगा, DsP2 हाइब्रिडेशन होगा, और DsP2 जो होगा वो होगा आपका स्क्वायर प्लेनर। ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सो कॉम्प्लेक्स विल बी डायमैग्नेटिक। रिमेंबर, जैसे आपको दिखता है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, और अगर आपको दिखता है कि पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक नेचर होगा। इन केस ऑफ COCl4 माइनस, यहाँ पर देखिए कि ये CO है 1 2 3 4, कोबाल्ट जो है वो कौन सी स्टेट में है, D6 सिस्टम बन रहा है, +3 स्टेट में है। अगर D6 सिस्टम बन रहा है और अब आपके पास जो लिगेंड है, सेकंड जो चीज आपको देखनी है वो कौन सी है, लिगेंड। अगर लिगेंड वीक है तो पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, कमजोर व्यक्ति कभी पेयरिंग नहीं करा सकता। तो यहाँ अपन देखते हैं DsP, तो इनको ये एज इट इज रहेंगे, इनमें पेयरिंग नहीं होगी और इसको यूज करने पड़ेंगे बाहर वाले, दैट इज SP, और P के कितने यूज होंगे, 3, S और 3P, दैट इज sp3। sp3 जब बनेगी तो टेट्राहेड्रल शेप होगा। रिमेंबर हियर देयर आर 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो दिस इज आल्सो नोन एज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। अगर यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक नेचर होगा। देयर आर सम लिमिटेशंस ऑफ VBT की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, लाइक क्वांटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक डेटा, ये कितना मैग्नेटिक होगा कितना कम होगा इसके बारे में ये कोई भी डेटा प्रोवाइड नहीं करता। एग्जिस्टेंस ऑफ इनर ऑर्बिटल एंड आउटर ऑर्बिटल के कॉम्प्लेक्स के एग्जिस्टेंस के बारे में डिटेल जानकारी नहीं देता। चेंज ऑफ मैग्नेटिक मोशन विद मोमेंट विद टेम्परेचर, चेंज ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट विद टेम्परेचर, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट में क्या चेंज होगा, इसके बारे में कोई रिलेशन नहीं देता। एंड लास्ट, कलर कॉम्प्लेक्स ये शो नहीं करता। दीज आर सम लिमिटेशंस ऑफ VBT। द नेक्स्ट थियरी इज CFT। VBT की जो शॉर्टकमिंग थी, जो कमियां थी, उनको दूर करने के लिए ब्रेथे और वेक ने सिद्धांत दिया, एक थियरी प्रपोज की, और वो थियरी थी CFT, दैट इज क्रिस्टल फील्ड थियरी। ये जो थियरी है इसमें क्या उन्होंने कंसिडर किया है, लिगेंड्स आर कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्ज। बहुत छोटा उन्होंने कंसिडर किया है कि लिगेंड जो है उसका साइज बहुत छोटा है और वो पॉइंट के फॉर्म में, और कैसे है वो चार्ज्ड है, कैसे है वो चार्ज। सेकंड, जो मेटल है, मेटल का जो ऑर्बिटल है, d ऑर्बिटल्स हैं, उन्होंने कहा है कि ऑल d ऑर्बिटल्स आर नॉट इक्वल। जो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं d सबशेल के, वो पांचों एक जैसे नहीं हैं। जैसे अपन देखते हैं dxy, dyz, dzx एंड dx² माइनस y² एंड dz²। तो यहाँ अगर अपन इनके स्ट्रक्चर से देखते हैं तो वी कैन क्लियरली सीन कि 2 टाइप के हैं। वन इज एक्सियल, ऑन द एक्सिस पे हैं, और दूसरे इन बिटवीन द एक्सिस पे हैं। जो एक्सिस पे हैं वो 2 हैं, दैट इज dx² माइनस y² एंड dz², और जो इन बिटवीन द एक्सिस हैं वो हैं dxy, dyz एंड dzx। तो जो 3 है उन्हें कहा उन्होंने T2G, एक एब्रिविएशन लिया उन्होंने T2G, दैट इज ट्रिपली जीरेड मीन्स 3 ऑर्बिटल्स ऑफ सिमिलर एनर्जी। सेकेंड, जो 2 हैं एक्सिस पे हैं, उन दोनों को उन्होंने कहा इजी, उन दोनों को उन्होंने कहा इजी मीन्स इक्वली जीरेड, और वो दोनों हैं dx² माइनस y² एंड dz²। अब अभी तो पांचों जो d ऑर्बिटल्स हैं वो एक जगह हैं, एक ही एनर्जी लेवल में हैं,
लेकिन जैसे ही लिगेंड आता है, लिगेंड की एनर्जी के इफेक्ट से ये जो 5 ऑर्बिटल हैं ये स्प्लिट हो जाते हैं, 2 ऊपर और 3 नीचे। कैसे स्प्लिट हो जाते हैं? 2 अलग और 3 अलग। ये डिपेंड करेगा कि कौन से 2 ऊपर जाएंगे या 2 नीचे रहेंगे। डिपेंड करेगा कि लिगेंड किस डायरेक्शन से आ रहा है। क्या वो एक्सिस से आ रहा है? अगर एक्सिस से आ रहा है तो एक्सिस वाले मींस इजी, दैट इज dx² - y² और dz², इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? हाई, और ये कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। लेकिन अगर जो लिगेंड आ रहा है वो इन बिटवीन द एक्सिस आ रहा है, तो अब जो T2G है वो उनसे टकराएंगे, रिपल्शन होगा और उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी? ज़्यादा। इन दोनों का जो एनर्जी गैप है, इट इज शोन बाय अ साइन डेल्टा। द एनर्जी डिफरेंस ऑफ T2G एंड EG लेवल इज designated by delta and it is also known as crystal field splitting energy। स्प्लिटिंग हो रहा है, टूट रहा है, एक ही चीज है और क्या हो रही है? स्प्लिट हो रही है। स्प्लिट का में T2G और EG में, तो इस एनर्जी को अपन कहते हैं डेल्टा, दैट इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अभी अपन ने कहा था कि जो लिगेंड है, अपने को कैसे पता चले कि कौन वीक फील्ड है और कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड है? तो आप इसको बहुत अच्छे से और बहुत एक फनी ट्रिक से याद कर सकते हैं। I-, Br-, SCN-, Cl-, S2-, F-, OH-, C2O4-, H2O, NCS, EDTA, NH3, EN, CN and CO। तो इसमें मैक्सिमम एक ट्रिक अपने पास है जिससे आप इसे याद कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक बहुत फनी है, इसको अपने को मार्केट में नहीं बोलना है। आपको सिर्फ याद रखना है आई के लिए कैसे करना है? आई बर्बादी Br, सनी दैट इज SCN, क्लास Cl, S से F फरार। आई बर्बादी सनी क्लास से फरार। ओ ऑक्सलेटो जल। नहीं सुना उड़ता अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो। तो क्या है ट्रिक? आई बर्बादी सनी क्लास से फरार, ओह ऑक्सलेटो जल मतलब H2O, नहीं सुना उड़ता अमोनिया इन कनाडा एंड कोलंबो। हमने नहीं सुना कि अमोनिया जो है उड़ता है कहाँ पे? कनाडा और कोलंबो में। ये बनाई हुई ट्रिक है, आप भी अगर चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन ये बहुत इजी है जिसमें आपको सीक्वेंस पता चल जाएगा। इस जल को मैंने यहाँ लिखा है, तो इसके बाद वाले जो सब है वो क्या है? स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्सेस है, और इसके पहले वाले जो हैं वो कौन से हैं? वीक फील्ड कॉम्प्लेक्सेस। अपन उनको मानते हैं, ऐसा नहीं है। स्ट्रॉन्ग और वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, उनके बीच के जो कॉम्प्लेक्स हैं उन्हें अपन मॉडरेट लिगेंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडरेट। वो वीक भी हो सकते हैं और स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं। ये कंपैरेटिव फिनोमेना है। क्या है ये? कंपैरेटिव फिनोमेना। सो इससे आपने बहुत अच्छे से सीख लिया होगा कि ये स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। इससे पावर पता चलती है कि कौन स्ट्रॉन्ग होगा और कौन वीक। जैसे अपन ने अभी यूज किया था CN और CO, तो डेफिनेटली ये क्या है? स्ट्रॉन्ग है। अपन ने यूज किया था Cl और F, वो डेफिनेटली क्या है? वीक फील्ड लिगेंड है। द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग दैट इज CFSE रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा, वो अपन इसमें देखेंगे। ये 2 टाइप से हो सकता है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए भी और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। जब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए होगा तो इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा O फॉर ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स जैसे आपने देखे होंगे, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में अपन क्या करते हैं? एक स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं, एक ऊपर और एक नीचे। सभी जो है कहाँ रहते हैं? लिगेंड्स ऑन द एक्सिस। सभी लिगेंड कहाँ हैं? एक्सिस पे है। तो यहाँ पर देखो, एक्सिस पे आपके ऑर्बिटल्स कौन से हैं? EG वाले। EG कौन से? आपका dx² - y² और dz²। तो आप जैसे ही लिगेंड अप्रोच करेगा ऑन द एक्सिस, एक्सिस से अप्रोच करेगा, तो एक्सिस के जो ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जी क्या होगी? हाई,
तो यहाँ पर देखिए along the axis that is dx square minus y square and dz square is orbitals, energy of Eg set of orbital is more than the energy of T2g set of orbital. तो जब ये स्प्लिट होगा तो ऊपर कौन जाएंगे Eg और नीचे कौन रहेगा T2g. पहले ऐसे थे, स्प्लिट हुए, ऊपर Eg और नीचे T2g इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स. जब अपन इनकी एनर्जी की बात करते हैं तो एनर्जी ऑफ Eg ऑर्बिटल विल इंक्रीज बाय 3/5. है कितने टोटल 5 में से ऊपर कितने गए 2, तो कितने ने पुश किया उनको 3 ने, तो कितना होगा 3/5. और नीचे वाले होंगे वो कितना होगा 2/5. नीचे कितना धक्का दे रहा है 2/5, ऊपर कितना हो रहा है 3/5. ये सिर्फ वैल्यू है, दोनों क्या होंगी सेम. यहां जैसे आप क्लियर कट देख पाएंगे इन दिस केस ये एनर्जी है 3/5 और ये है 2/5. दिस इज Eg एंड दिस इज T2g. और ऑर्बिटल होते हैं आपके नॉर्मल. जैसे लिगेंड आता है, लिगेंड के आने से उसकी एनर्जी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है और जैसे इंक्रीज होती है ये क्या होता है स्प्लिट हो जाता है इन द सेट ऑफ Eg एंड T2g. ओके, सो यहां पर दो चीजें होगी, वन इज पेयरिंग एनर्जी, अनदर वन इज स्प्लिटिंग एनर्जी. एक क्या होगा पेयरिंग और एक क्या होगा स्प्लिटिंग. इफ डेल्टा O, that is octahedral splitting energy, is less than P, the fourth electron enters in Eg. अगर उसकी एनर्जी ज्यादा है, डिफरेंस क्या है कम है तो कहाँ चला जाएगा नीचे, अगर नहीं है तो कहाँ जाएगा ऊपर. फिर से if delta O is smaller than P, the fourth electron enters in Eg set. देखो आप ये डिफरेंस है, ये कम डिफरेंस है तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा Eg में. और कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा T2g3 एंड Eg1. लिगेंड्स फॉर डेल्टा O इज लेस देन P आर नोन एज वीक फील्ड लिगेंड. कौन से हैं ये वीक फील्ड लिगेंड्स हैं एंड फॉर्म हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. दूसरा केस देखते हैं इसका जस्ट अपोजिट. इफ डेल्टा O इज मोर देन P, it becomes more energetically favorable for fourth electron to occupy T2g orbital with configuration T2g4. Energy required for pairing of an electron, where P is the energy required for pairing of electron. We have already gone through this. यहाँ पर जो मैंने बताया आपको कि ये नॉर्मल है, ये एक जैसे हैं, डिजेनरेट हैं, यहाँ कोई स्प्लिटिंग नहीं है. लेकिन जैसे ही इसके कांटेक्ट में कोई लिगेंड आता है, कोई पॉइंट चार्ज आता है, तो इसकी एनर्जी क्या होती है थोड़ी इंक्रीज होगी. इंक्रीज होने के बाद ये क्या हो जाते हैं स्प्लिट हो जाते हैं एंड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नोन एज डेल्टा O, दैट इज CFSE. द सेम विल टेक्स प्लेस इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. जब अपन बात करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, जैसे अपन ने एग्जांपल लिया sp3 हाइब्रिडाइजेशन. sp3 हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल का केस अपन लेते हैं तो यहां आप देखिए कि अब जो लिगेंड है वो कहां से आएगा इन बिटवीन द एक्सिस. इन बिटवीन द एक्सिस अगर इन बिटवीन द एक्सिस होगा तो ध्यान रखिएगा कि अब T2g कहां जाएगा ऊपर और Eg कहां रहेगा नीचे. क्यों? क्योंकि जैसे पॉइंट आ रहा है वो कहां आ रहा है इन बिटवीन द एक्सिस, और इन बिटवीन द एक्सिस कौन से ऑर्बिटल हैं T2g. तो T2g की एनर्जी क्या होगी ज्यादा, और T2g की एनर्जी ज्यादा होगी, Eg की क्या होगी कम. फैक्टर वही रहेगा 2/5 एंड 3/5. दिस इज डेल्टा T. वहां अपन शो कर रहे थे डेल्टा O से, यहाँ अपन शो कर रहे हैं डेल्टा T से. T रिप्रेजेंट फॉर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस. वही सेम कॉन्सेप्ट है कि T2g की सेट ऑफ ऑर्बिटल्स ज्यादा हैं एनर्जी से, किससे Eg से. In such d orbitals, splitting is inverted in smaller as compared to octahedral. यहाँ जो स्प्लिटिंग है वो थोड़ी कम होगी किसके कंपेयर में ऑक्टाहेड्रल के कंपेयर में. इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स, अगर लिगेंड नहीं है, मान लो अपन ने अब बार बार कहा है कि जब ये डीजेनरेसी है, एक जैसे हैं,
ये कब इनकी एनर्जी बढ़ रही है? जब लिगेंड उसके क्लोज आ रहा है। अगर लिगेंड उसके क्लोज नहीं होगा तो इसमें स्प्लिटिंग नहीं होगी। इन एब्सेंस ऑफ लिगेंड्स, सी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट अकर and hence substance is colorless. There is no color in absence of ligand. Okay, in TiH2O whole 6 3+, that is hexa aqua titanium third ion, violet in color, and this copper, that is tetra aqua copper second ion, is blue in color. There are some limitations of CFT. The first one is it does not consider the formation of pi bonding complex, क्योंकि अपन ने शुरुआत में कहा था पाई कॉम्प्लेक्स भी बनते हैं जहाँ पर डबल बॉन्ड के थ्रू डोनेशन होता है या कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, तो ये उसमें कंसिडर नहीं किया गया है। इट डज नॉट कंसिडर द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्डिंग। इट आल्सो अनेबल टू अकाउंट सेटिस्फैक्टरली फॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड। अब इसने कहीं ये नहीं कहा कि ये स्ट्रॉन्ग ही है और ये वीक ही है। जैसा अपन ने कहा कि बीच वाले मॉडरेट हैं, तो कौन सा मॉडरेट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, इसे क्लियर कट इंडिकेट नहीं कर पाए। दैट इज इट डज नॉट एक्सप्लेन व्हाई H2O इज स्ट्रॉन्गर देन OH। क्यों भैया आपने OH को पहले रखा, H2O को बाद में रखा, इसके बारे में इसने कोई जानकारी नहीं दी। इट गिव्स नो अकाउंट फॉर पार्शियली कोवलेंट नेचर, क्योंकि जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, जो आयनिक बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है? पार्शियल कोवलेंट होता है। जब भी अपन ने देखा है कि वैल्यू अगर 1.77 से ऊपर जाए। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एज द नेम इंडिकेट्स ऑर्गेनोमेटेलिक। द ऑर्गेनिक पार्ट अटैच्ड डायरेक्टली विथ मेटल, देन सच कंपाउंड्स आर नोन एज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। दे कंटेन वन और मोर मेटल कार्बन बॉन्ड। तो इनमें जो बॉन्डिंग होगी वो कौन सी होगी? मेटल टू कार्बन। जैसे अपन बोलते हैं लिथियम मेटल कॉम्प्लेक्स, लिथियम मेटल के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं लाइक CH3Li, या अपन एक बहुत फेमस लेते हैं अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RMgX या CH3MgBr। तो CH3 और Mg का बॉन्ड है, CH3 और कार्बन और लिथियम का बॉन्ड है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं ये कहलाते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। दे कंटेन वन और मोर मेटल carbon bond in their molecule. They are of following types. First one is sigma bonded complex. पहला क्या हो सकता है कि मेटल और कार्बन के बीच में कौन सा हो बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, लाइक इन केस ऑफ टेट्रा इथाइल लेड, या आपका जो RMgX है दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। These are some examples of organometallic compound with sigma bond. Second one is pi bonded complex. Pi bonded complex का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जीसस सॉल्ट। जीसस सॉल्ट, जीसस कैसे याद रखते हैं अपन? बाय क्रॉस। तो याद रखिए जब अपने को जीसस का स्ट्रक्चर नहीं आता है तो अपने को जीसस को याद करके कैसे क्रॉस लगाना है, लाइक दिस। और यहाँ पर सेंटर में रखना है अपने को पीटी को। सेंटर में किसको रखना है? पीटी को। तीन साइड से लगाना है अपने को Cl और एक साइड लगाना है CH2 CH2। तो ये जीसस सॉल्ट है, तो यहां अपन ने रखा दिस N इज नीटा। नीटा वही है कि कितने एटम्स या कितने एटम के द्वारा वो पाई बॉन्ड को दे रहा है, कि 3 उसमें इन्वॉल्व है कि 2 उसमें इन्वॉल्व है। चूंकि यहाँ पे 2 कार्बन के बीच में है इसलिए इसकी जो नीटा है उसकी वैल्यू कितनी होगी? 2। जीसस सॉल्ट इज KPtCl3N, जैसा मैंने बताया आपको इस टाइप से होता है, इन विच इथिलीन एक्ट एज ए लिगेंड। हियर रिमेंबर देयर आर 4 लिगेंड्स, 3 लिगेंड्स आर ऑफ Cl and 1 ligand is ethylene, ethylene having double bond, and because of this is comes under pi bonded compounds. Next one is ferrocene. Ferrocene is sandwich like compound. जैसे सैंडविच होता है, बीच में अपन क्रीम रखते हैं, नीचे एक टोस्ट लेते हैं, ऊपर भी टोस्ट लेते हैं। तो ये जो पार्ट है, एक स्लाइस ये है, एक स्लाइस ये, और बीच में क्या है? क्रीम है, मसाला है। तो ये जो कंपाउंड बनते हैं क्या होते हैं? फेरोसीन। फेरोसीन में नीचे एक C5H5 की रिंग होती है और ऊपर भी एक C5H5 की होती है और बीच में क्या आता है? मेटल। दिस इज द फेरोसीन, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। यहाँ पर जो नीटा की वैल्यू कितनी है? 5,
क्योंकि ये जो C5H5 है ये पूरा एक देता है, ऐसा नहीं किसी एक कार्बन के थ्रू जा रहा है। वो जो रिंग करंट है, जिसमें रिंग करंट में कितने एटम इन्वॉल्व है, 5, दैट्स व्हाई हियर नेटा इज 5। एंड देन कुछ केसेस ऐसे भी देखेंगे अपन जहां पर सिग्मा बॉन्ड भी होगा और पाई बॉन्ड भी होगा, और वो केस होगा मेटल कार्बोनाइल। इन देयर एग्जांपल मेटल कार्बोनाइल बॉन्ड ऑफ मेटल कार्बोनाइल हैविंग सिग्मा एंड पाई बॉन्ड कैरेक्टर, जिसमें दोनों टाइप के कैरेक्टर होंगे। उनका एक अच्छा सा एग्जांपल है विल्किंसन कैटलिस्ट। विल्किंसन कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कीन, डबल बॉन्ड के लिए अपन यूज करते हैं। अनदर एग्जांपल है जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। एक और जो एग्जांपल है वो कौन सा है, जिगलर-नाटा कैटलिस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंस हियरिंग। We'll meet you very soon in next lecture. Till then, take care of yourself. For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.